نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی سربراہی میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، اعلیٰ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، قانون نافذ کرنے والے سول اور عسکری اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں ملک کی داخلی سیکیورٹی صورتحال کا جامع جائزہ لیا گیا اور عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ عوام کی توقعات کے مطابق آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر رکھا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کریں گے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت کریں گے۔ وفاقی وزراء اور عسکری حکام بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں سعودی عرب، چین سمیت خلیجی ممالک کی مختلف منصوبوں میں دلچسپی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور امریکی وزیر دفاع کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹ رائڈر کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امریکی وزیر دفاع لائیڈ جے آسٹن نے فون پر بات کی۔ پیٹ رائڈر نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر اور امریکی وزیر دفاع نے باہمی مفاد کے امور پر گفتگو کی، جبکہ اس دوران علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اور توشہ خانہ کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم پیروی پر درخواست ضمانت خارج کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر اعتراض عائد کر دیا گیا۔ رجسٹرار آفس نے دونوں درخواستوں کو اعتراض کے ساتھ آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ان کیمرہ ہوگی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو چلان کے نقول فراہم کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانگ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران مارے جانے والے دہشت گرد اغوا، برائے تاوان قتل اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ڈالر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد مسلسل 21ویں روز ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ روپے کی قدر مزید مستحکم۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 77 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 284 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 85 پوائنٹس کے اضافے کے بعد اٹلی کے شہر وینس کے بس حادثے میں غیر ملکیوں سمیت 21 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اٹلی کے شہر وینس میں بس پل فلائی اوور کے جنگلے کو توڑتے ہوئے نیچے ریلوے پٹریوں کے قریب جا گری، جس کے بعد بس میں آگ لگ گئی۔ بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے، 5 یوکرینی، 1 جرمنی اور بس ڈرائیور بھی شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने गैर कानूनी मकीम तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कानून नाफिज करने वाले सिविल और अस्करी अदारों के सरबराहान भी शरीक थे। एलामिये के मुताबिक इजलास में मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जामे जायजा लिया गया और अज़्म का इजहार किया गया कि अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक आयन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों का इनखला और गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की अफराद की प्रॉपर्टी और तजारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत खुद निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम भी शरीक होंगे। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक की मुख्तलिफ मंसूबों में दिलचस्पी का जायजा भी लिया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक काबिल अमल मंसूबों की मंजूरी भी दी जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर में इजाफी स्पेक्ट्रम की नीलामी से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए ने मजीद बताया है कि वज़ीर आज़म की सैर सदारत इजलास में मादनियात, ज़राअत, कानकुनी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने फोन पर बात की। पेट राइडर ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की है, जबकि इस दौरान इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है। £190 मिलियन करप्शन और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन पीटीआई की अदम पैरवी पर दरख्वास्तें जमानत खारिज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर एतराज आयद कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरख्वास्तों को एतराज के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर जमानत की दरख्वास्तें खारिज की। 10 अगस्त 2023 का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि दरख्वास्तों पर फैसला आने तक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत को मंजूर किया जाए। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब को भी फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में इन कैमरा होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम अडयाला जेल पहुंच गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी के वकला समेत उनके साहबजादे जैन कुरैशी और साहबजादी मेहर बानो भी अडयाला जेल पहुंच गई हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चलान के नकूल फराहम किए जाएंगे। एफआईए ने अदालत में जमा करवाए गए चलान में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया है। पीटीआई की जानिब से 12 वकला को अडयाला जेल में दाखिले की इजाजत दी गई है।
लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस की जानिब से मुलजमान की गिरफ्तारी के वक्त प्रोसीजर इख्तियार न करने पर जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने 9 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक प्रोसीजर के तहत रिमांड पेपर तैयार न करने पर डीपीओ बहावलपुर एसएचओज और तफ्तीश पर 5 रोज में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड के लिए ज़िमनी में सफ़े के आखिर पर सीरियल नंबर और एफआईआर नंबर दर्ज होना चाहिए। मुल्जिम के खिलाफ केस डायरी बाकायदा रजिस्टर्ड हो, जिस पर मुतल्लिका एसएचओ के दस्तखत भी हो। मुल्जिम के खिलाफ एफआईआर पर भी सीरियल नंबर दर्ज हो और रोजनामचा भी इसी रोज अंदराज हो। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्द अगवा, बराए तावान, कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्वस थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई तमाम केसेस में सुरखरू होंगे और पीटीआई इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर खजाना असद उमर का कहना था कि नवाज शरीफ की आमद और मरियम नवाज के जलसे पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जलसी हुई, इसको जलसा ना कहिए। उन्होंने कहा कि शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई तो मिल गई। नवाज शरीफ को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, उनको असूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए था। डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मुसलसल 21वें रोज भी डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी रहा है। रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम हो गई है। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 284 रुपए 95 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 85 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 86,842 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। खबरें और भी शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि एबटाबाद में पेट्रोल सस्ता होने के बाद भी महंगाई में कमी ना आ सकी। इंतजामिया अवामुन्नास को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहरी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े हैं। तफसीलात वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से जानते हैं। जी उबैदुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन महकमे आरटीए और दीगर इंतजामिया की जानिब से किसी भी चीज़ में कोई भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। उसकी वजूहत क्या हैं? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, और क्या इस पेट्रोल सस्ता होने से, डीजल सस्ता होने से आवाम को भी रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनको नूर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई का। जब पेट्रोल कोई सस्ता होता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए था कि महंगाई के खिलाफ जो बढ़ती हुई महंगाई है, आटा है, चीनी है, मिल पैक है, एवरीडे है, सब चीज़ें महंगी है। जब पेट्रोल 8-10 रुपये सस्ता करते हैं तो 10 रुपये चीज़ भी सस्ती होनी चाहिए। आटे का रेट भी कम होना चाहिए, चीनी का रेट भी कम होना चाहिए, दालें का भी कम होना चाहिए। मैं दालों को रो रहा हूँ तो पति को मैं नहीं रोया। पति को मैं तो बैन करूंगा। सदके जावा पति वालों से 3200 रुपए किलो पति ले रहे हैं आप, उसका रेट भी कम होना चाहिए। हर चीज सस्ती करनी चाहिए। फेल और इन डंडों की जोर पे हुकूमत पाकिस्तान चलता है। और इंशाअल्लाह ताला मैं गुजारिश करता हूं कि खुदा आर्मी चीफ साहब
हम आपको सलूट मारते हैं जरूर कि चीनी डाल्टा आटा थोड़ा सा अगर पेट्रोल सस्ता है और सस्ता करें डाल्टा को भी, हर चीज को भी, कि हम आपके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल जी, शहरी से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जहाँ पर पेट्रोल सस्ता होता है वहीं पर बाकी चीज़ों में भी कमी आनी चाहिए, उनके रेटों में कमी आनी चाहिए। अब तक महंगाई उसी की तरह बरकरार है और ज़िले इंतजामिया से अपील। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ननकाना साहब में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों के जड़ावाला रोड, सब्जी मंडी, रेलवे रोड पर वाक़ नमक यूनिट्स पर छापे, 5 यूनिट्स की चेकिंग करके 20 किलो गैर मेयारी नमक को तल्फ कर दिया गया। मालिकान को 35,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने बताया कि नमक के सैंपल नाकिस पाए जाने पर कार्रवाई को अमल में ला गया। नमक में आयोडीन की मिकदार मुकर्ररा हद से कम पाई गई है। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात, जंगलूद ग्राइंडिंग मशीन ज़ेर इस्तेमाल की। यूनिट्स में मौजूद मुलाजमीन के मेडिकल्स भी अदम मौजूद पाए गए। प्रोसेसिंग एरिया में कीड़े मकोड़ों मक्खियों की भरमार पाई गई। पैकिंग के लिए तैयार नमक टूटे गंदे फर्श पर रखा पाया गया। सुबह भर में खुराक का कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है। अपने इर्द गिर्द मौजूद मिलावट माफिया की इतला पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर 1223 पर दें। पत्तोकी में इमरान नामी मुलजिम ने अलमदीना इलेक्ट्रिकल के नाम से प्राइवेट वर्कशॉप बना रखी थी, जहां पर एफआईए टीम ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करके 18 ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए, जो कि वापदा की मालकियत निकले। मुलजिम उनकी कोई दस्तावेजात पेश न कर सका। एफआईए टीम ने 15 ट्रांसफार्मर गैर रजिस्टर्ड वर्कशॉप जबकि 3 ट्रांसफार्मर मुलजिम के घर से बरामद कर लिए। जराये के मुताबिक वापदा मुलाजमीन हकीम सज्जाद, हुमायूं असगर और मोहम्मद अशरफ समेत दीगर की सहूलतकारी से इस वर्कशॉप पर नए ट्रांसफार्मर का सामान तब्दील करते थे। मुलजिमान नया सामान निकाल कर पुराना डाल देते, जिसकी वजह से आए रोज डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर खराब हो जाते थे। वापदा एहलकार सार्फिन से रिश्वत वसूल करके खराब ट्रांसफार्मर इस गैर रजिस्टर्ड वर्कशॉप से रिपेयर करवाते। एफआईए ने वर्कशॉप के मालिक समेत वाक़ये में मुलव्वस दीगर वापदा मुलाजमीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके इमरान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलव्वस वापदा मुलाजमीन के अलावा दीगर एहलकारों के मुतालिक भी तफ्तीश की जाएगी। छापामार टीम ने बरामद होने वाले ट्रांसफार्मर कब्जे में लेकर मकामी वापदा अफसरान के हवाले कर दिए हैं। सादिकाबाद के इलाके हुसैनाबाद में स्कूल से वापसी पर 8 साला तालिबा से इज्तिमाई जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने टॉफियां दिलाने के बहाने वीराने में ले जाकर बच्ची से इज्तिमाई जिनसी ज्यादती की। बच्ची को तिबी मुआयने के लिए शेख जैद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। बच्ची के वालिद की मदय्यत में मुलजमान के खिलाफ जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची की वालिदा का कहना है कि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं। ज्यादती का शिकार बच्ची की वालिदा का आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा है। मेरी बेटी का नाम नूर फातिमा है। 2 मुलजमान ने का निशाना बनाया है और मुझे इंसाफ की हुकूमत से अपील है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फिरोज वटवा में निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन ने मेन जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि 4 माह से बोनस भी नहीं दिया गया और बढ़ी हुई सैलरी भी नहीं दी जा रही। अंदर खाना इंतहाई गलीज किस्म का है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम एहतजाज को खत्म नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस बारे में? इस वक्त मौजूद है फिरोज वटा मेन जीटी रोड पर, जहाँ पर निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन की जानिब से मेन जीटी रोड जो है वो बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि इनको जो है 4 माह से ना ही तो बोनस में दिया जा रहा है और ना ही बढ़ी हुई जो सैलरी है वो दी जा रही है, जिसकी वजह से ये सरापा एहतजाज है। इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर जी 4 महीने हो गए ने सर जी, किसी बंदे को सर सैलरी नहीं मिली है। ये जान के लगे ने अंदरू साडा बॉस आया, उस बंदे ने कहा जी अंदर लैटर आ गया 32,000 का, लेकिन साढ़े तक पहुंचा नहीं है कि लैटर की साइकिल से होंगे मेरा पहुंचा नहीं है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਖੱਟੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੱਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ।
2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਡੇ ਲਗਾਇਆ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈਗੀ, साड़ी वही पुरानी सैलरी फिर का कहना था कि जो स्टाफ है उसकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी गई है, मगर जितने हम मुलाजमीन हैं इनमें से किसी की सैलरी जो है वो नहीं बढ़ाई गई, वो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये सरापा एहतजाज है। और उस वक्त तक ये एहतजाज जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा और काम पर नहीं जाया जाएगा जब तक इनकी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सेनेट में कायदे ऐवान और साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मईशत और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने इसहाक डार की बाहैसियत साबिक वफाकी वजीर खजाना खिदमात को सराहते हुए कहा कि साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने हर मुश्किल वक्त में मुल्क की मईशत को संभाला और सही डगर पर डाला है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इसहाक डार ने 1998 में एटमी धमाकों के बाद मईशी पाबंदियों के बावजूद मुल्क की मईशत को गर्दाब से निकाला, जबकि माजी करीब में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम के साथ कोशिशें कामयाब रही हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। तारीख गवाह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की खिदमत की, उनके अदवार में मुल्क ने बेपनाह तरक्की की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के शोबों में मिसाली तरक्की हुई है, मोटरवेज, अस्पताल और यूनिवर्सिटियां बनी। इस मौके पर इसहाक डार का कहना था कि माजी करीब में इत्तेहादी हुकूमत की अनथक कोशिशों की वजह से मुल्क को दिवालिया करने का मंसूबा कामयाब न हो सका। इत्तेहादी हुकूमत के दोरस इकदाम की वजह से आज मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। इसहाक डार ने कहा कि डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। इसहाक डार का कहना था कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरान से निकालने में मौसर किरदार अदा किया। खोलने के बारे में भी सिखाया क्या उन्होंने कहा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डीएसपी एवीएल एस सिटी डिवीजन वकार अशरफ गोंदल ने हमेशा की तरह फिर मैदान मार लिया है। लाहौर शहर में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके और सबसे ज्यादा मुकदमात चलान करने में पहले नंबर पर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक के हुक्म और एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ राना मोहम्मद जाहिद की हिदायत पर डीएसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन वकार अशरफ गोंदल की सरबराही में शहर लाहौर से गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। डीएसपी एवीएल एस सिटी डिवीजन वकार अशरफ गोंदल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 8 रोज में 65 लाख रुपए की 3 गाड़ियां, 3 रिक्शे और 32 मोटरसाइकिल बरामद करके 2 गैंग्स के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में दर्जनों वारदातों का भी इंकशाफ किया, जबकि मजीद इंटेरोगेशन भी जारी है। तर्जुमान डीआईजी सीआईए असद रजा के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जाता है, जो कि लाहौर शहर में मास्टर की का इस्तेमाल करके शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी करके दूसरे अजला में सस्ते दामों फरोख्त करते थे। मुल्जिमान के कब्जे से बरामद होने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल, चोरी शुदा रिक्शे स्पुर्दारी के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं। पुलिस के इस बेहतर इकदाम को सराहते हुए डीआईजी सीआईए की जानिब से नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। को न सिर्फ खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के हैरत अंगेज हकाइक बताए जाते हैं, बल्कि गुजरते वक्त के साथ इल्म की बढ़ती हुई अहमियत और अफादियत से भी आगाह। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अमराज कल्ब के आलमी दिन की मुनासबत से वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में आगाही वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर कामरान खालिद ख्वाजा, प्रिंसिपल प्रोफेसर नौरीन अकमल, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डायरेक्टर क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल प्रोफेसर बिल्किस शबीर, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, शोबा कल्ब के सरबराह प्रोफेसर बिलाल मौयूदीन, डॉक्टर मतीउल्लाह सीनियर रजिस्ट्रार और दीगर फैकल्टी मेंबरान भी उनके हमरा मौजूद थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि दिल की बीमारी इंतहाई अहम और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह गैर मेयारी और गैर मतवाजन खुराक का इस्तेमाल और जिस्मानी वर्जिश का फुकदान है। हमारे लिए जरूरी है कि इलामात की सूरत में फौरी तशखीस और फौरी इलाज इंतहाई अहमियत के हामिल है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका सर गंगाराम अस्पताल में प्रोफेसर बिलाल मौयूदीन की सरबराही में शोबा कार्डियोलॉजी में मजीद तौसी की जा रही है।
शोबा कार्डियोलॉजी में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर नौरीन अकमल का कहना था कि हामिला खवातीन में दिल की बीमारियों की शरह 4% है। ये बीमारी नौजवानों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात का सबब अमराज़े कल्ब है। प्रोफेसर बिलाल मोयुद्दीन ने कहा कि जिसकी बड़ी वजूहात गैर मेयारी ग़िज़ा, बुलंद फिशार खून, ज़ियाबतीस, तंबाकूनोशी, खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और जिस्मानी वर्जिश की कमी है। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी और सर गंगाराम अस्पताल के इश्तराक से शोबा अमराज़े कल्ब में जदीद इलाज, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास की तरफ गामजन है। मुकर्ररीन का इस मौके पर कहना था कि अमवात की बड़ी वजह दिल की बीमारियां हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात जवान अमवात है जो कि गलत चीजों के इस्तेमाल करने से होती हैं। अमराज़े कल्ब के आलमी दिन पर ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि बहुत आसान तदाबीर से आप इस जानलेवा मर्ज से बच सकते हैं। लश्कर चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। महकमा सेहत माँ और बच्चे की सेहत के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने में मसरूफ IRMNC डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर खलील अहमद ने पंजाब में क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सैयद आसिफ इलियास से। जी आसिफ, बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी महकमा सेहत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मदर एंड चाइल्ड, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर खलील अहमद हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या बेहतरी आई और इनके दौर के अंदर महकमे में भी एक बड़ा अच्छा तासुब गया कि इनके दौर में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बताइएगा जरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है IRMNCH न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो कि पूरे पंजाब के 36 ज़िलों के अंदर है। बुनियादी तौर पे ये शुरू हुआ था लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम से, उसके बाद इसमें MNCH की सर्विसेज आ गई और फिर न्यूट्रिशन प्रोग्राम आ गया। उसके बाद से ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और इसमें जो हमारा फोकस है वो रूरल एरिया है और प्राइमरी हेल्थ केयर है। वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते और ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ सेहत की सहूलतें उन्हें ज़रूरत होती हैं और वहाँ हम सेहत की सहूलतें वहाँ हम पहुँचाते हैं। इसमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती हैं और जो हमारे इस वक्त 1834 24/7 PAUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, वो 24 घंटे हामला औरतों के लिए सेहत की सहूलतें मुहैया करते हैं, जिसमें हमारी ANC है, PNC है, डिलीवरी है और इसके अलावा इस वक्त हमारी रूरल एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो 500 पहले थी और उसके बाद हम इसमें इजाफा हुआ है रिसेंटली। वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब ने 214 एम्बुलेंसों का इजाफा किया है। जी, जैसा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर खलील अहमद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से प्राइमरी एंड सेकेंडरी मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम को 214 MLS मिलने से इसके अंदर मजीद बेहतरी आई है। कैमरा मैन मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियां फूटने के खदशात। सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों ने हिदायत जारी कर दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं डॉक्टर से, जिन्होंने कोहिनूर न्यूज को खसूसी इंटरव्यू के दौरान क्या क्या हिदायत जारी की हैं। मौसम में जो आजकल तब्दीलियां आ रही हैं और ये सीजनल चेंजेस जो हैं स्किन के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, स्पेशली फीमेल्स के अंदर और बच्चों के अंदर। तो इन सब माहौलियाती तब्दीलियों में सबसे पहले ये है कि आप अपनी स्किन को वॉश करके रखें। ऑयली स्किन जो होती है वो एक्जिमा के अंदर, डर्माटाइटिस के अंदर और दूसरी जो एक्नी वगैरह की डिजीज़ हैं उसमें बड़ा कॉमन रोल प्ले करती है। इसमें डर्मोवेट क्रीम है, दूसरे लोशंस हैं जो कि आप सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्केबीज़ का मर्ज़ है वो भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो इस सब को रोकने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप माहिर डर्माटोलॉजिस्ट की खिदमात भी हासिल करें। बच्चों के अंदर स्किन के इश्यूज भी ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे पैम्पर्स लो क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर भी डर्मोवेट और नेपी रैश जो हैं क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए और उनको वॉश भी करना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 times a day बच्चों को वॉश करना ज़रूरी है। थैंक यू।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर MCL मोहम्मद अली रंधावा ने बल्दिया उज़्मा लाहौर के अफसरान को शहर में जारी पोलियो मुहिम में पोलियो टीम्स को मॉनिटर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर भर में पोलियो की टीमों की मॉनिटरिंग के लिए MCL के अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जोनल ऑफिसर MCL सदाकत अली मलिक ने टाउनशिप में पोलियो टीम्स की कारकर्दगी को चेक किया। पोलियो के कतरे पीने वाले बच्चों के अंगूठे पर ब्लैक मार्क निशान को भी चेक किया। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर लाहौर भर में पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाली टीमों के सरप्राइज दौरे करके उनकी कारकर्दगी और हाजिरी को भी चेक करने का सिलसिला जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किस्वत की ज़ेर सदारत लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी के बारे में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में लाहौर के तमाम थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की शिरकत, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग रोड्स और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बारे में भी जायजा लिया गया। नाकिस कारकर्दगी और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में नाकामी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चूंग, जौहर टाउन, सांदा, फैक्ट्री एरिया और पीर को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन, शादमान, गुलबर्ग, पुरानी नारकली, गुलशन रावी और मुस्लिम टाउन को भी शोकॉज नोटिस जारी किए गए। DIG का कहना था कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम दस्तयाबी वसाइल बुरवेकार लाए जाएंगे, जबकि जदीद टूल्स, डेटा एनालिसिस समेत IT बेस्ड पुलिसिंग का भी फरोग मेरी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों को मेरिट पर बरवक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मेहनती और ईमानदार अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी और काम चोरों को घर का रास्ता दिखाएंगे। लाहौर में डेंगी मुलाजमीन भी हक के लिए बाहर निकल आए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर डेंगी मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहा है। आपको बताएं कि लाहौर में डेंगी मुलाजमीन भी अपने हक के लिए बाहर निकल आए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर डेंगी मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहा है। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासर है। आपको बताएं कि लाहौर में डेंगी मुलाजमीन भी अपने हक के लिए बाहर निकल आए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर डेंगी मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहा। एहतजाज के ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर है। आपको बताएं कि लाहौर में डेंगी मुलाजमीन भी अपने हक के लिए बाहर निकल आए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर डेंगी मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहा है। एहतजाज के दौरान ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई है। लाहौर में डेंगी मुलाजमीन भी हक के लिए बाहर निकल आए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर डेंगी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। बानी रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान डॉक्टर रिजवान नसीर ने 12वें नेशनल रेस्क्यू चैलेंज का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर डॉक्टर रिजवान नसीर का मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहना था कि नेशनल रेस्क्यू चैलेंज कोऑर्डिनेशन और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि नेशनल रेस्क्यू चैलेंज तमाम शुरा को एक दूसरे से सीखने का मौका फराहम करता है। तर्जुमान रेस्क्यू फारूक अहमद के मुताबिक नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में पाकिस्तान भर से इलाकाई मुकाबलों की 19 विनर टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, एलीट पुलिस, पंजाब, अल खिदमत फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सियालकोट, रेस्क्यू वार्डन रेस्क्यू की डिविजनल टीमों समेत 19 टीमें शरीक हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 3 दिन तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानी दहशतगर्दों का हाथ है। अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में एक अरसे से मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस भी हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक हो चुकी है। गुज़श्ता चंद महीनों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में तेजी आई। पाकिस्तान में TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही भी हासिल है। अदालत शुमार के मुताबिक पिछले चंद महीनों में
پاکستان میں ہونے والے 24 خودکش حملہ آوروں میں سے 14 افغانی حملہ آور تھے۔ 12 مئی 2023 کو مسلم باغ میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں 5 ٹی ٹی پی افغانی دہشت گرد ملوث تھے۔ 12 جولائی 2023 کو زوب کینٹ پر دہشت گردوں کے بزدلانہ بار میں 5 میں سے 3 افغانی دہشت گرد تھے۔ اسی طرح 30 جنوری 2023 پولیس لائنز پشاور اور 29 ستمبر 2023 کو ہنگو میں خودکش حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان ہی سے تھا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ افغانستان سے آنے والی دہشت گردی سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے افغان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر عمل درآمد شروع کر چکے ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ افغان دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں دہشت گردوں کو سرگرمیوں سے روکنے میں پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا زیر تعمیر اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، کانٹریکٹر اور سائٹ پر موجود پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ اسرار سعید نے کہا کہ اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا مجموعی طور پر 83% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ فلائی اوورز کے گریڈز کی لانچنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ فلائی اوورز کے دونوں اطراف ریٹننگ والز پر بھی کام 24 گھنٹے میں جاری ہے۔ اکبر چوک فلائی اوور منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور ڈائریکٹر ٹیپا نے یو ٹرنز پر ٹریفک کی روانی کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی تمام یو ٹرنز پر ٹریفک روانی کی مانیٹرنگ کرنے کی بھی ہدایات۔ اس موقع پر ایل ڈی اے، نیسپاک اور ٹیپا کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ لاہور میں ایک اور اغوا کا ڈرامہ کرنے والا شخص منظر عام پر آ گیا ہے۔ چند روز قبل شیرا کوٹ سے اغوا ہونے والے سنار مغوی کا ڈراپ سین ہو گیا۔ شیرا کوٹ سے اغوا ہونے والا مغوی مظہر علی خود ہی اغوا کار نکلا۔ اغوا ہونے والا مغوی خود ہی گھر والوں کو مختلف جعلی نمبروں سے کال کر کے لاکھوں روپے تاوان مانگتا رہا۔ ترجمان سی آئی اے کے مطابق مغوی مظہر علی اپنے ساتھی خورشید سے مل کر اپنے اغوا کا ڈرامہ کرتا رہا۔ ڈی ایس پی اغوا برائے تاوان سیل کی سربراہی میں مغوی کی بازیابی کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی۔ مغوی مظہر علی کو ڈیٹا بیس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے رحیم یار خان کے علاقے سے بازیاب کروایا گیا۔ بازیاب ہونے پر انکشاف ہوا مغوی گھر والوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اغوا ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا ہے۔ مغوی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ سونے کا کاروبار کرتا تھا جس میں لوگوں کے پیسے دینے تھے۔ مغوی مختلف اوقات میں بینک اکاؤنٹ اور جائز کیش اکاؤنٹ کے ذریعے لاکھوں روپے گھر والوں سے منگوائے۔ ملزم کو پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ ایس سی آئی اے نارتھ فرقان بلال کا ڈی ایس پی میاں انجم توقیر اور اس کی ٹیم کو شاباش اور تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دینے کا اعلان۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کی ورلڈ کپ سے پہلے ایک اور ناکامی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کی افتتاحی تقریب کو اچانک منسوخ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کوہ نور نیوز کے نمائندے حمزہ عباسی سے۔
जी हमजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बीसीसीआई की एक और बद इंतजामी और नाकामी जो है वो सामने आ गई है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, जो कि इफ्तिताई मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच से कबल जो 4 अक्टूबर को अहमदाबाद के स्टेडियम नरेंद्र मोदी में होना थी, वो जो है मनसूख कर दी गई है। जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें भारतीय जो फनकार हैं अरिजीत सिंह, आयशा घोषाल, तमन्ना भटिया, उन्होंने परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन बीसीसीआई ने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक अब जो सेरेमनी है वो मनसूख कर दी गई है। अब बीसीसीआई ने कहा है कि जो 10 टीमें जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा ले रही हैं वो 4 अक्टूबर को अहमदाबाद के स्टेडियम नरेंद्र मोदी में इकट्ठी होंगी। वहां पर तमाम टीम के जो कैप्टन हैं वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाएंगे। उस फोटोशूट के बाद प्री वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टीमों के कप्तान करेंगे। उसके बाद जो है वो जो ओपनिंग मैच है वर्ल्ड कप 2023 का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में नरेंद्र मोदी में खेला जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि जो भारतीय बद इंतजामी थी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था जो कि 15 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक रखा गया था, वो भी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जो है इनके कौमी त्यौहार नवरात्रि की वजह से 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल किया गया। और अब ये दूसरी बार हमने देखा है और ये वर्ल्ड कप में पहली मरतबा ऐसा देखने को हो रहा है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो मनसूख कर दी गई है, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था इंग्लैंड में वर्ल्ड कप से एक दिन कबल जो है वो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। तमाम क्रिकेट टीम्स के जो साबिक प्लेयर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, जो एक्टर होते हैं, वो वहां पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री का फ्लैग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अलबत्ता आईसीसी ने और बीसीसीआई ने इसकी अभी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की कि किस वजह से मंसूख कर दी गई है, लेकिन बीसीसीआई की स्टेटमेंट के मुताबिक आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको मंसूख कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हमजा अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।